Hello everyone. Today is the day 9 of the 30 days CodeForces series. So, if you are not following the series yet, what are you waiting for? Go and follow the series. The playlist link is in the description. Go and check it out. Today, we will be solving a problem which is known as a chocolate bunny. This is an interactive problem. So, this is a new type of problem which we will be discussing. This is a 1600 level problem. So, we will be taking care of we are solving a difficult problem. So the problem link is in the description, so you can go and read it first. And once you are done with reading the problem, we will start with the explanation. So yeah, I hope you would have read the problem. So now the problem, what does the problem says? So this I have done for explanation, but problem says that you are having a permutation of size n. And now what you can do is you can ask queries. Hey, a of I, suppose you can ask I and j. Take two any indexes of the permutation and ask a of I moduli a of j, and our system will give us the answer. So doing this, you can ask such queries for 2n times. Now, if you don't know about interactive problems, so just let me tell you a brief about it. So in this problem, what happens is it is not a usual problem. In case what happens is you ask some for some particular type of query and it gives the answer of that particular query. मतलब क्या, सपोज ऐसा कुछ है कि यार आपको आपको एक क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि व्हाट इज द एरे, एक एरे आपको प्रिंट करना है और वो पूछा है कि अगर आप ith इंडेक्स पूछोगे, इफ यू विल प्रिंट द ith इंडेक्स, तो फिर वो क्या करेगा, आपको ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करके दे देगा। तो ऐसे ही करके आपको पूरा एरे को प्रिंट करना है। दिस इज जस्ट एन इजी इजी एग्जांपल। इफ यू डोंट नो अबाउट इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, तो मैं एक ब्लॉग का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड रीड द ब्लॉग फर्स्ट। बट बेसिकली ऐसा होता है कि यू कैन आस्क क्वेरीज एंड उस क्वेरी का आंसर हमें इनपुट के तौर पे मिलेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट यू हैव टू फाइंड आउट वेदर whatever is being asked in the question. फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या पूछा है कि एक परम्यूटेशन है, बट वो परम्यूटेशन आपको दिखने वाला नहीं है। तो आप क्या करो, आई एंड जे ये दो वैल्यूज पूछो और वो ए ऑफ आई मॉड्यूला ए ऑफ जे की वैल्यू आपको देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एरे। एंड ऐसे ही आप क्वेरी कितने बार पूछ सकते हो, 2n टाइम्स। तो अब ये हम कैसे करेंगे? तो अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा है इंटरेक्टिव प्रॉब्लम क्या होता है, तो जस्ट इमेजिन कर लो कि एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम ऐसा बोला है कि आपको इंडेक्स आई देना है और वो इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है वो आपको प्रिंट कर देना है। तो फिर मतलब वो आपको इनपुट में मिलेगा। तो सपोज आपने पहले 1 दिया तो उसने आंसर में 3 दिया, फिर आपने 2 दिया, फिर उसने आंसर में 4 दिया, उसने 5 दिया, आपने 5 दिया, उसने आंसर में 1 दिया, फिर आपने 3 दिया, उसने आंसर में 5 दिया। ऐसे किया आपने 4 क्वेरी में, तो 4 क्वेरी में ही आपको आंसर मिल जाएगा क्या, कि फर्स्ट इंडेक्स पे 3 है, सेकंड इंडेक्स पे 4 है, थर्ड इंडेक्स पे 5 है, फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ तो है नहीं पता, बट फोर्थ और फाइनल इंडेक्स पे 1 है। अब फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जो एलिमेंट अब तक इसमें नहीं आया है, विच इज 2। सो फिर इस तरीके से वी कैन कंस्ट्रक्ट द एरे। सिमिलरली नाउ हियर वी हैव बीन आस्क्ड कि ए ऑफ आई मॉड्यूला ए ऑफ जे हमें प्रिंट करना है, मतलब वो वैल्यू हमें दी जाएगी अगर हम आई और जे पूछेंगे तो। So how can we do it in 2n operations? You can think of it first, take a pause, here is the hint, and think of it. And once you are done with your thinking, we will start with the problem. So I hope you would have thought for it something. So you might have thought for it. Let's start with the explanation of the problem. So see here, just think of it. What is 2 modulo 3? You will say, hey, it's very easy, it's 2. What is 3 modulo 2? It's 1. What is 5 modulo 3? So it's 2. What is 3 modulo 5? Is 3. So one observation which you can have is, if you have a moduli of a larger number with smaller number, then you are getting a smaller number as compared to when you are having a reverse of it. See here, when you are having 5 moduli 3, that smaller number is on the right side, so you are getting an answer of 2. But when the smaller number is on the left side of the modulo, you are getting a greater answer. So we will use this technique and try to find out the answer. What we will do is, just remember this technique, what I have just told you, that let's just make another text box and put it over there just for your reference. So just remember this, and now let's come here. What I am trying to say is, let's just say I will have a pointer over here and another pointer over here, I and j. So I asked him, hey, I is 1, j is 2. Now tell me the value of a of I and a of j. So it told me, hey, a of I
A of I modulo A of j is nothing but 3 modulo 4, which is 3. Now we cannot see the values 3 and 4, but we can see that the answer we have got is 3. Now we ask him, hey, give me the value of A of j modulo A of I. So it told me that, hey, its value is actually 4 modulo 3 is 1. Now, after seeing those two values, can you figure out which was the smaller value? See here, when 2 was the smaller value, the moduli we get was 2. When 3 was the smaller value, the moduli which we get was 3. So since here you can see that the larger value which we got, the larger value, the larger value which we got is here is 3. So by looking at 3, we can conclude that one of the value is actually 3. Are you able to get what I'm trying to say? What I just concluded that after seeing the value 3, what I can conclude is the smaller number is actually 3. Look at here. Here the larger value between 2 and 1 was 2. 2 larger value थी तो smaller element कौन सा है 2. यहाँ larger value कौन सी थी 3 तो smaller element कौन सा है 3. Similarly, अगर हमने उनको ij की ये वैल्यू दी और हमने क्या पूछा फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेरी पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क करते हैं. फर्स्ट क्वेरी हमने ये पूछी, हमें आंसर मिला 3. सेकंड क्वेरी हमने उल्टा पूछी, हमें आंसर मिला 1. तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है 3. सो सिंस वी नो कि यार जो बड़ी वैल्यू है वो 3 है, इसका मतलब क्या होता है, इफ द बिगर वैल्यू इज 3, तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि वन ऑफ द वैल्यूज इज एक्चुअली 3. आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो विद दिस थिंग इन माइंड हम एक चीज करने वाले हैं. हम क्या करने वाले, सी लेट्स जस्ट से i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2. ठीक है, अब हम क्वेरी पूछेंगे कि यार मुझे 1 और 2 की वैल्यू बताओ, तो वो क्या बोलेगा कि 1 पोजीशन पे 3, 2 पोजीशन पे 4, तो इसका मॉड्यूलर आता है 3. हम बोलेंगे वाओ, ठीक है. फिर हम इसका रिवर्स पूछेंगे, वो बोलेगा 4 मॉड्यूलर 3, वैल्यू आती है 1. सो सी, हमेशा याद रखना, लेट्स सी हियर, जो बड़ी वैल्यू थी 2, जो बड़ी वैल्यू आई थी दोनों मॉड्यूलर में से 2, दैट वाज एक्चुअली द स्मॉलर वैल्यू. राइट, यहाँ पे भी सेम है, जो बड़ी वैल्यू आई थी 3, दैट वाज एक्चुअली द स्मॉलर वैल्यू. सो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू आई है 3, that is actually the smaller value. And since it is the smaller value, ये कब आई होगी, जब स्मॉलर वैल्यू आइथ पोजीशन पे, मतलब ये अगर पहले वाले के लिए आई है तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर वैल्यू जो है वो आइथ पोजीशन पे है. तो हम क्या करेंगे, एक 5 साइज का हमने एरे बनाया था. ठीक है, 5 साइज का हमने एरे बनाया एंड ओके, 5 साइज का एरे बनाया एंड हमने देखा कि सबसे पहले ओके आई क्या था 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने डाल दिया 3. कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर हम क्या करेंगे, आई को हम जे की पोजीशन पे भेज देंगे और जे को एक से आगे भेज देंगे. अब जो पोजीशन से वो क्या है 2 और 3. तो अब जो हम नेक्स्ट क्वेरी पूछेंगे वो क्या पूछेंगे 2 और 3. तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 4 मॉड्यूलर 5 दैट इज 1. देन नेक्स्ट क्वेरी पूछेंगे 3 और 2, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 5 मॉड्यूलर 4 विच इज 1. एंड सॉरी, ऊपर की केस में हमें आंसर 4 मिलेगा. तो ऊपर की क्वेरीज अभी रिमूव कर देते हैं. तो इन दोनों आंसर में से जो बड़ा वाला आंसर है वो क्या है 4. और वो अगेन किस केस में आ रहा है, पहले वाले केस में. पहले वाले केस में आ रहा है मतलब छोटी वैल्यू कहाँ पे, आई पे, और छोटी वैल्यू किसके इक्वल होगी 4 के. फिर से हमने आई वाले पोजीशन पे छोटी वैल्यू डाल दी, आई को फिर से जे के इक्वल कर दिया और जे को आगे बढ़ा दिया. अब मिली है वैल्यू 3 और 4. तो हमने फिर से क्वेरी पूछा, पहले हमने पूछा 3 4. सो दे टोल्ड अस 3 पे 5, 4 पे 2. सो आंसर दे गिव अस 1. देन 4 पे 3 एंड इस पे 3. उल्टा पूछा, सो दे गिव अस एन आंसर एज 2. सो बड़ी वैल्यू इस बार कौन से केस में आ रही है, जे के केस में आ रही है. तो फिर छोटा एलिमेंट कौन सा होगा 2 होगा, और वो कहाँ होगा जे की पोजीशन पे. तो जे की पोजीशन क्या है 4, तो फोर्थ पोजीशन पे हम 2 डालेंगे. एंड इस बार हम आई को जे के इक्वल नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, हम जे को सिर्फ एक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि आई पे तो हमें पता ही है कि बड़ा एलिमेंट है ही. हमें हमेशा बड़े एलिमेंट को क्लच करके रखना है, क्योंकि बड़े एलिमेंट की वजह से हमें हमेशा आंसर मिल जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेरी जो हम पूछेंगे वो क्या होगा 3 और 5. So we asked for 3 or 5, which is 5 modulo 1, which was 0. Then we asked for the reverse 5 or 3. So the answer we got was 1 modulo 5, which is equal to 1. So यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1, और ये कौन सी पोजीशन के लिए आई है, जे पोजीशन के लिए. तो जे पोजीशन पे जो वैल्यू आई है उसके बदले हमने क्या डाल दिया 1. अब जो लास्ट पोजीशन बचेगी, अब जे की वैल्यू फिर से बढ़ गई 6, विच इज आउट ऑफ द इंडेक्स. तो क्वेश्चन खत्म. वी आस्क्ड ऑल अवर क्वेरीज और यहाँ पे हमारा एरे मिल गया. बट स्टिल यू माइट आस्क कि एक वैल्यू तो हमेशा बच जाएगी. तो वो जो वैल्यू बचेगी, मान लो इनिशियली हमने वहाँ -1 रखा था या 0 रखा था, कुछ भी रखा था,
अब वहां पे जो वैल्यू हमें उस मान लो 0 रखा था, तो हम चेक करेंगे एरे में कि यार जहाँ पे 0 है ना वहां पे हम एन डाल देंगे। वाई एन, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हम जब ये कर रहे थे ना तो हमेशा हमें छोटी वैल्यू, ये देखो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है, तो हमें 2 मिल गया था। 5 और 3 में छोटा कौन सा है, 3 है, तो हमें 3 मिल गया था। तो हमें हमेशा छोटी वाली वैल्यू मिलती जाएगी, बड़ी वाली नहीं मिलेगी। तो अगर दो नंबर है उसमें बड़ी वाली वैल्यू नहीं मिल रही है तो सबसे, जब हम लोग पहले 1 और 2 का करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 नहीं मिलेगा। फिर मान लो हम 2 और 4 का कर रहे हैं तो हमें 2 मिल जाएगा, 4 नहीं मिलेगा। फिर मान लो हम 4 और 3 का कर रहे हैं तो हमें 3 मिल जाएगा, 4 नहीं मिलेगा। फिर मान लो हम 4 और 5 का करें, एंड ऑफ द डे यही होगा ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही हमें नहीं मिली होगी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो एन होगी, इसके लिए हम यहाँ पे एन प्रिंट कर देंगे। सो या द प्रॉब्लम वाज क्वाइट सिंपल, सिंपली हम यही करेंगे। हमें बस ये याद रखना है आई और जे स्टार्ट करना है। अगर तो आई पे वो वैल्यू मिली है तो आई को जे पे मूव कर दो और जे को एक आगे बढ़ा दो, एल्स सिर्फ जे को आगे एक बढ़ा दो। सो if you would have any doubts, you can ask in the comment box. I will show you the code in CPP. You can try the same in Java. So हाँ, हमने वेक्टर एरे लिया, 0 से इनिशियलाइज किया जैसा मैंने कहा था, एंड वी केप्ट ऑन आस्किंग क्वेरीज। एंड फिर हमने वो क्वेरी में चेक किया, अगर पहली वैल्यू बड़ी मिली है मतलब क्या है कि पहली एक्स की पोजीशन पे हम फिल कर सकते हैं और एक्स को वाई पे डाल देते हैं, मतलब आई को जे पे डाल देते हैं, जैसा भी यू कैन से मैंने आई जे लिया था वहां पे, यहाँ पे एक्स वाई लिया है। एंड देन अगर वो ऐसा नहीं है तो सीधा हम वाई को वाई पोजीशन पे, जेड पोजीशन पे फिल कर देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। इस केस में हम क्या कर रहे थे, आई को जे पे डाल रहे थे फिर बढ़ा रहे थे, और इस केस में डायरेक्टली जे को आगे बढ़ा रहे थे। तो या दिस वाज द कोड, एंड लास्ट में प्रिंट करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के पूरा एरे प्रिंट कर देते हैं। जहाँ पे भी 0 है वहां पे हम लोग एन प्रिंट करते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक वैल्यू अनफिल्ड रह जाएगी। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम चॉकलेट बनी। इट इज एन इंटरेक्टिव प्रॉब्लम, तो अगर किसी को कुछ स्टिल डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड दिस इज द डे 9 ऑफ द सीरीज, कल डे 10 होगा सीरीज का। सो if you are not following the series yet, then go and follow the series. I will see you in the next one.